بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 سورہ الزلزال۔ سورہ زلزال کا آیت نمبر 2 جو ہے، اس کا پہلے لیسن میں ہم نے اس کی تجوید، ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھے۔ پھر تفسیر کا جو پارٹ 1 تھا، اس میں اس سے پچھلے لیسن میں ہم نے اس کی جو عظیم زلزلے کا ایک یہاں پہ ذکر ہوا ہے، زلزلات الارض، کہ زمین کو شدت سے ہلا دیا جائے گا، اس کا ہلایا جانا۔ تو یہ جو شدت سے ہلایا جائے گا وہ کیسے ہے؟ کیا زمین تباہ ہو جائے گی؟ قیامت کبریٰ، یعنی کہ ایک تو زمین تباہ ہوگی، کیا وہی زمین کا ہلایا جانا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو دوسرا جو پوائنٹ آف ویو تھا سائنس کا، اس بارے میں کیا ہے کہ کیا زمین زلزلہ آئے گا اس سے ہلائی جائے گی، تباہ و برباد ہوگی، یا پھر یہاں حدیث کا حوالہ بھی تھا۔ تو یہ جو سارے پوائنٹ تھے، اور یہ ہم نے پچھلے لیسن میں تفصیل کے ساتھ پڑھے۔ آج یہ ہے کہ زندگی کے شعبوں میں زمین کیسے ہلائی جائے گی۔ مطلب پچھلی 1-1.5 صدی میں زمین میں اس طرح کے اثرات پیدا ہوئے کہ جو پوری دنیا میں ویو کی طرح، جیسے ایک ایٹم بم یا میزائل پھٹتا ہے تو اس کی ویوز پھیل جاتی ہیں، اس طرح سے تو پوری دنیا پہ یہ ایک زلزلہ آیا۔ کیسا زلزلہ آیا؟ زندگی کے جو امور ہیں ان میں زلزلہ، شعبوں میں، ضروریات زندگی میں، انسانوں کے سوچنے اور کام کرنے میں جو زلزلہ آیا وہ کیا زلزلہ تھا؟ تو یہ جو زلزلہ ہے، زندگی کے شعبوں میں زلزلہ، ضروریات میں زلزلہ، ان کی سوچ میں زلزلہ، حکومتوں میں زلزلہ، یہ سارا جو ہے اس کی تفصیل آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، سب سے پہلا جو شعبہ ہے کہ وہ ہے امور حکومت۔ امور حکومت میں بیداری، اور کیا ہے کہ اس میں زمین کو کیسے ہلا دیا گیا، زلزلات الارض، زمین کو ہلا دیا گیا حکومت کے کاموں میں۔ کس طرح سے؟ پہلے جو حکومت ہوتی تھی، ایک بادشاہت ہوتی تھی، بادشاہ اور اس کی آگے نسل میں مروسی بادشاہ چلتی تھی کہ اس کا بیٹا یا اس کا وہ بادشاہ ہوگا، اور یہ جو بادشاہت ہوتی تھی، یہ جو ان کے گرد ہوتی تھی، چند ایک لوگوں کے بیچ میں رہتی تھی، کوئی آگے کوئی پیچھے، اور ان کے بیچ میں رہتی تھی۔ لیکن جو پچھلی 1-1.5 صدی میں یہ ہوا کہ اس کے سارے اصول بدل گئے۔ بادشاہت جو تھی، حکومت جو تھی، وہ لوگوں کے پاس آ گئی۔ پہلے جنگ عظیم اول میں، جو کہ پچھلی صدی میں ہوئی، حکومت جو سلطنت عثمانیہ تھی، اس سے لوگوں نے آزادی حاصل کی، وہ ٹوٹ گئی اور اس سے بہت سارے ملک بنے، یعنی کہ لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی ایک نہیں، اپنی مرضی سے اپنا بادشاہ خود چنے، اور اس طرح سے۔ اس کے بعد پھر برطانیہ نے ملکوں پہ قبضہ کر لیا ترقی کے نام پر، تو لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی اور لوگوں نے اس سے بھی جان چھڑائی جنگ عظیم 2 میں۔ اور اس سے جو تھی وہ، کیونکہ لوگ جو چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ اب جو ہے حکومت وہ کرے جس کو وہ چاہیں، اور جو تھی بادشاہت، اس کی جگہ جمہوریت نے لے کی، اور لوگوں نے اپنی جو ہے الیکشن کے ذریعے ووٹ دے کر حکومتیں بنانا شروع کی۔ تو یہ ایک عظیم اور بڑی یعنی کہ ایک ایسی ویو تھی جو پوری دنیا میں تقریباً چلی، اور دنیا کے بیشتر حصے پہ اس کا اثر ہوا، اور لوگوں میں الیکشن اور جمہوریت اور یہ جو تھی یہ وجود میں آئی۔ پھر دوسرا نمبر ہے یہاں پر مذہبی اختلاف میں۔ تو مذہبی اختلاف میں کیسے زمین پر زلزلہ آیا، اس دنیا میں زلزلہ آیا؟ یہ جو فرقے، بہت سارے فرقے بنے، یہ تقریباً 400 سال پہلے ہیں جو کہ فرقے بننا شروع ہو گئے اسلام میں، اور باقی مذہبوں میں تو پہلے سے بہت سارے فرقے تھے۔ لیکن پچھلے 1-1.5 صدی میں ان میں یہ اس طرح سے اختلافات پیدا ہوئے کہ ہر کوئی جو جس فرقے میں تھا، ہر مذہب میں ایسا ہوا کہ وہ دوسرے کو انتہائی غلط کہنے لگا، اور لوگوں کو اشتعال دلانے لگے ایک دوسرے کے خلاف، اشتعال دلا کر ایک دوسرے کے بیچ لڑائی کرانا اور اشتعال دلانا، اور جس مذہب پہ جس میں وہ خود تھے اسی کو صحیح کہنا، باقی سب کو غلط قرار دینا کہ یہی بس ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اختلاف تھا یہ بھی کافی بڑھ گیا۔ اس کے بعد تھا سیاست میں زلزلہ۔
सियासत के मैदान में ज़मीन कैसे हिलाई गई। तो सियासत के मैदान में मज़ीद ज़मीन को इस तरह से हिला दिया गया कि सियासत के जो असूल थे वो बदल गए। पहले ये होता था कि एक जो मुल्क होता था उसकी जो सियासत होती थी उसका बादशाह उसके जो हुक्मरान होते थे उन चंद लोगों के बीच में रहती थी। लेकिन फिर ये पिछली सदी में क्या हुआ, 1 डेढ़ सदी में कि ये जो मुल्क थे, जो बादशाह होते थे या जो हुकूमतें होती थी, वो दूसरी हुकूमतों के अंदर इंटरफेयर करने लग गई, उनमें दखल-अंदाज़ी करने लग गई और कुछ कंपनियाँ बना के उनके ज़रिए से दखल-अंदाज़ी करने लग गई। तो दूसरों के मुल्कों में जाके उनके कानून में, उनकी सियासत में और उनके खाने-पीने यहाँ के कैसे चीज़ें बेचेंगे, खरीदेंगे, उनमें दखल-अंदाज़ी शुरू हो गई। फिर था मुआशियात में ज़मीन को कैसे हिला दिया गया। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये जो है माशियात के मैदान में। माशियात के मैदान में कैसे ज़लज़ला आया कि माशियात में जो तब्दीली हुई, उसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। जो अशिया पहले ज़माने में तोइश और उम्रा और का वाहिद हक समझी जाती थी, मतलब जो ऐशो-इशरत और जो थी बहुत सारे जो उमरा होते थे, जो बादशाह होते थे, उनके लिए जो चीज़ें मैसर होती थी, वो आम लोगों में हो गई। अब अगर देखिए पिछली सदी में भी अगर देखिए कि अगर कोई मिस्र का कोई वो फ़िरौन उठ के आ जाता और वो देखता, तो वो तो शायद हार्ट अटैक ही उसे हो जाता कि उसके वक़्त में जो सहूलतें उसे थीं, सिर्फ़ बादशाह को और बादशाह के चंद लोगों को, वो आम लोगों के पास आ रही थी। और इसको देख के ये इस तरह से हुआ कि जैसे मतलब एक उस वक़्त क्या होता था कि बादशाह जो होता था उसके यहाँ नाच गाने वाले होते थे। लेकिन पिछली सदी में इस तरह से सिनेमे और रेडियो और ये इस तरह आम हुआ कि लोग चंद रुपयों की जो थी उसकी टिकट लेके जाके वो सब तमाशे देख रहे होते थे और इस तरह कर रहे होते थे और इस तरह से जो है खाने-पीने की चीज़ों में जो एक मुल्क की चीज़ें दूसरे मुल्क में और दूसरे की अफ़्रीका के हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की चीज़ें अमेरिका में और अमेरिका की अरब में और इस तरह से पूरे मुल्कों में जो था ये एक दूसरे की चीज़ें और फल और सब्जियाँ और वो सब कुछ पहुँचने लगा जो कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ बादशाहों के पास ही होता था। जी, उसके बाद है मादनियात में ज़लज़ला। ज़मीन जो थी वो हिला दी गई मादनियात में। मादनियात में ज़मीन कैसे हिलाई गई है? इस तरह से कि अब देखिए जैसे पिछली सदी में अरब ममालिक में तेल निकल आया और उसकी वजह से जंगें होने लगी और जो बड़े ममालिक थे जिनके पास ज़्यादा ताकत थी वो उन लोगों को दबाने लगे और उसके हिसाब से चलने लगे कि नहीं और उसी के हिसाब से उनके लोगों को भी दबाना उन पे भी असर पड़ना और जंगें और सारा कुछ और जो पूरे इत्तेहाद बनने लगे वो इसी वजह से बनने लगे और गरीब मुल्कों को इस तरह से दबाया गया कि उनको क्या नाम है उनसे जो थे वो लिए तो लिया जाता था लेकिन उनके जो होते थे ये जो एसेट्स थे उनके यानी कि उनके पास अगर कोई चीज़ है ऐसी जैसे तेल निकला तो उसपे कब्ज़ा करें। यानी कि उसको ज़्यादा उन मुल्कों ने इस्तेमाल किया जिनका वो था नहीं और जिनके पास था जो गरीब मुल्क थे उनको बहुत कम और बहुत महँगा और इस तरह से यानी कि उनके जो थे हकूक़ वो गस्ब किए गए। फिर बैंकिंग निज़ाम जो था वो पिछली सदी में जो था वो तकरीबन डेढ़ की सदी में हुआ और फिर हुंडी का तरीका इस्तेमाल हुआ और ब्लैक मनी और वाइट मनी और इस तरह से एक दूसरों के जो थे वो हकूक़ गस्ब किए गए उनके जो थे वो पैसे पे और सब पे कब्ज़ा किया गया और फिर आज क्या है, आज अगर देखें तो आज जिन मुल्कों के पास कुछ मुल्कों में लिथियम है, जो कि एक मादनियात है और इसी तरह रेकोडिक है और कुछ और मादनियात हैं, उनकी वजह से जंगें हो रही हैं। और उनकी वजह से जिन मुल्कों के पास हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा होता है, इस तरह किया जाता होता है उनके कब्ज़ा करने के लिए। यहाँ पे आप देखें कि तेल की वजह से ईरान, इराक का हाल देखें और फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है। तो आज भी आज के अब मैं इसकी जो यहाँ पे वाक़यात लिखे बहुत ज़्यादा तफ़सील से इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि आज आपके पास एक मोबाइल है, आप देखेंगे तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा और ये जो हालात हैं आज भी आपके सामने हैं, हालात हाज़िरा में भी। तो इसलिए तकरीबन काफ़ी हद तक पता है और मज़ीद वाक़यात आप पढ़ना चाहें तो इसमें लिखे हुए हैं पेज नंबर
ये है पेज नंबर 407 से लेके 4010 तक। तो ये वाक़यात जो हैं वो सारे लिखे हुए हैं काफ़ी तफसील के साथ। जी, इसमें मादनियात में अज़ीम जो थी ज़मीन को जो हिलाया गया, उसके बाद इसकी बारी आती है रिश्तों में जो एहतराम था, रिश्तों के हवाले से ज़मीन को हिला दिया गया। रिश्तों के हवाले से कैसे ज़मीन को हिला दिया गया, उसमें कैसे ज़लज़ला आया कि पहले अब देखें इस्लाम आया और उसमें रिश्तों का बहुत ज़्यादा एहतराम था। शायद दूसरे मज़ाहब में भी किसी हद तक होगा। माँ-बाप का, मियाँ-बीवी का, औलाद का, बहन का, हर तरह से यहाँ तक कि जो ज़िंदा तरगोर कर दी ज़िंदा दफ़न कर दिए जाते थे उनको उसमें जायदाद में हिस्सा मिल गया और हर एक का इतना लिहाज़ और इस तरह से था। लेकिन पिछली डेढ़ की सदी में ये रिश्तों का एहतराम भी ख़त्म होता चला गया। यहाँ तक कि पहले जो बीवी जो होती थी वो ख़ावंद की खिदमत करती थी, लेकिन अब जो है पिछली सदी में भी देखें तो ऐसा है कि ख़ावंद बीवी के पीछे-पीछे फिरता है और उसकी खिदमत कर रहा होता है और अब तो बिल्कुल ही आवे-कावा बिगड़ गया। यहाँ तक कि वालिदैन जो हैं वो आज तो बिल्कुल अपने बच्चे को डाँटने का हक़ भी नहीं रखते और ये पिछली सदी से डेढ़ सदी से चल रहा है इस तरह से और आज बढ़ता-बढ़ता बढ़ रहा है। और यहाँ तक रिश्तों का एहसास था कि एक दफ़ा हारून रशीद जो थे, इमाम मालिक साहब ये अब्बासी खलीफा थे और इनकी हुकूमत जो थी वो यूरोप से लेके एशिया के किनारों तक फैली बहुत बड़ी हुकूमत थी इसकी। तो वो इमाम मालिक थे उस वक़्त, उनके पास खलीफा वक़्त जो थे, जिसकी बादशाह यूरोप से लेके एशिया के किनारों तक फैली हुई थी, उनसे दरख़्वास्त करते हैं इमाम मालिक साहब से कि मेरे लड़कों को भी पढ़ा दिया करें। तो वो मंज़ूर कर लेते हैं और वो कहते हैं कि वो लड़के उनके घर पे हाज़िर होकर सबक ले लिया करें। इसी तरह एक दिन जो बादशाह होता है वो यानी कि हारून रशीद जो है वो ये देखने के लिए कि मेरे लड़के किस किस्म की तालीम हासिल कर रहे हैं, खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह की खिदमत में हाज़िर होते हैं और इमाम मालिक उठते हैं तो मामून उनका जो बेटा था वो दौड़कर उनके आगे उनकी जूती रख देता है। बादशाह को हालाँकि अपने दूसरे बेटे से ज़्यादा प्यार था जिसका नाम अमीन था। लेकिन वो ये नज़ारा देखकर कहते हैं कि हारून रशीद तख़्त का वारिस जो है वो तो मामून ही होगा। हारून रशीद ये कहते हैं तख़्त का वारिस तो मामून ही होगा। मगर आजकल देख लीजिए कि उस्ताद का कोई इज़्ज़त, कोई एहतराम, यहाँ तक कि माँ-बाप की वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं रहा है। और ये पिछली 1 डेढ़ सदी में इस तरह फैला कि उससे शुरू हुआ और आज तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फिर है मज़हब में मज़हब में ज़लज़ला। मज़हब के हवाले से ज़मीन को किस तरह से हिलाया गया कि मज़हबियात जो थी, मज़हब में इस तरह से मज़हब बूँदे-बूँद गिर गया कि मज़हब के ख़िलाफ़ पहले बोलना जो होता था वो किसी को पसंद नहीं होता था। कोई बोलता था तो वो ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में और अंदर ही अंदर दूसरे को पता ना चले। लेकिन पिछली सदी में ये बिल्कुल आम हो गया। किसी को दूसरे की परवाह नहीं थी और हर तरह से मज़हब के ख़िलाफ़ बातें और जो भी जिसका भी मज़हब है उसके ख़िलाफ़ जो भी तनकीद करना और सब यहाँ तक कि इंग्लिस्तान का जो गिरजा था वो एक महदूद बादशाही थी और उसी को जो था मसीहियत को उसका सही नक्शा बताता था। फ्रांस का पादरी रिपब्लिक को अंजील की हकीकी तस्वीर साबित करता और फ़ाशिस्ट जो थे पादरी फ़ाशिज़्म को मज़हब की रूह बताते। यानी कि इस तरह से हर एक जो थे वो मज़हब को उन्होंने अपनी जो थी जो उनका फ़िरका था, जो उनका मज़हब था उसी को सही बताना, बाकी सबको गलत कहना। तो ये जो था ये मज़हब के में इतना ज़्यादा ये और हर मज़हब में ये हुआ, हिंदुइज़्म में भी हुआ, बाकी मज़ाहब में भी। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ा कि मज़हब में इख्तलाफ जो था वो जो था एक इस तरह से ज़लज़ला जैसे आया होता है, वो आ गया। फिर एक अहम मसला आया इख़लाक़ियात का। इख़लाक़ियात के मैदान में भी जो था यहाँ पे सदाकत आ रहा है। इख़लाक़ियात के मैदान में भी एक ज़लज़ला आ गया। इख़लाक़ जब इस्लाम आया तो इख़लाक़ में इस तरह से था इख़लाक़ियात के हमसाए जो हैं वो आपकी ज़ुबान और आपके हाथ से महफूज़ होने चाहिए। यहाँ तक हुक्म था कि आप अगर कोई अच्छी चीज़ बनाती हो तो आपकी खुशबू हमसाए के घर ना जाए। अब देखिए इंसान अपनी खुशबू को कैसे रोक सकता है? लेकिन मतलब ये था उसका कि या तो आप उसको शरीक करो या फिर आपकी खुशबू भी उसके पास ना जाए। यानी कि आप
अच्छी चीज़ बनाओ तो हमसाये को भी उसमें शरीक करो। यहाँ तक कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो। जानवर जो हैं वो भी इससे उनको भूखा प्यासा ना रखो और जितना बोझ उठा सकते हैं उतना ला दो। तो इतनी इखलाकियात की, लेकिन पिछली सदी में इन इखलाकियात का भी बेड़ा गर्क हो गया। इसमें भी कोई इखलाक नहीं रहा। इसमें इस तरह से ज़लज़ला आया कि बड़े-बड़े मसाइल पैदा हो गए। फिर है सदाकत के मैदान में ज़लज़ला। सदाकत के मैदान में कैसे ज़लज़ला आया कि जो बड़े-बड़े मुल्क थे, उन्होंने जो थे वो छोटे मुल्कों के साथ या छोटे लोगों के साथ इस किस्म के झूठ बोलते थे कि वो एक प्रोपेगेंडा, एक प्लान करके कि ये झूठ बोलना है, इस तरह से उसको प्रोपेगेंडा का नाम दिया गया और दूसरे मुल्कों के खिलाफ जो थे वो किए जाते थे। और उसके बाद फिर एक तो होता है इंसानों की हद तक झूठ बोलना और गलत बयानी करना, लेकिन ये मुल्कों की हद तक हुआ और इस तरह से, और बाद में उसको बताया जाता बड़ी खुशी फ़ख्र के साथ कि ये हमने किया और इस तरह से हमने उन लोगों को धोखा दिया और ये फैला दिया जो कि झूठ था, ये बातें फैला दी जो कि झूठ थी। तो ये इसके वाक़यात भी लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर वॉल्यूम 8 है, पेज नंबर 408 पर है मज़ीद वाक़यात। यहाँ इंग्लिस्तान के लिखे हुए हैं और क्या नाम है, जर्मन के लिखे हुए हैं और इंग्लैंड के, जिनकी उस वक़्त बड़ी थोड़ी हुकूमतें थी, तो उनके लिखे हुए वाक़यात। फिर है अमानत के मैदान में भी ज़लज़ला आया। ज़ुलज़िलातिल अर्ज़, अमानत के मैदान में ज़मीन को किस तरह से हिला दिया गया। अमानत के मैदान में जब जंग अज़ीम अव्वल हुई, उसमें जो एक उससे पहले थोड़ा-सा वो बैंकिंग सिस्टम बनाया गया, तो जो छोटे मुल्कों की पैसे और सोना और उनमें जो रखा गया था, वो उनको वापस ही नहीं किया गया, उन पर कब्ज़ा कर लिया गया। फिर उससे बढ़कर ये हुआ कि आगे चल के थोड़ा-सा जो था वो दूसरों की ज़मीनों पे कब्ज़ा होने लग गया और उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके कर लिया जाता, एक थोड़े से पैसों की एवज़ लीज़ पे ली जाती थी, उस पे कब्ज़ा कर लिया कर जाता और जब वो उसको वापस करने की बात करते तो अपनी शराइत रखी जाती। तो ये इसी में इराक, शाम और फ़लस्तीन भी शामिल हैं, जिन पर कब्ज़ा किया गया। तो ये जो था, ये एक ऐसी जंगें फिर इससे शुरू हो गईं और इस तरह से लोगों के चश्मों पर, तेल पर, पानी पर, मतलब जो मादनियात थी, उन पे कब्ज़ा किया गया। तो ये अमानत, सदाकत जो थी, इसके मैदान में भी ज़मीन, पूरी ज़मीन के ऊपर, अगर आप ये वाक़यात हिस्ट्री में पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई। फिर है यहाँ पर शर्म-ओ-हया में ज़मीन को हिला दिया गया। इससे पहले ये होता था कि कोई अगर गलत काम करता था, तो वो छुप-छुपा के करता था। माज़रत, तो वो छुप-छुपा के करता था, लेकिन पिछली सदी में इस तरह शर्म-ओ-हया को उतार के फेंक दिया गया। आज तो ख़ैर उससे भी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो इस तरह से फेंका गया कि किसी को भी जो था वो इस बात का ख़्याल नहीं रखा जाता था और ये बड़े-बड़े उमरा क्या और आम लोग क्या, सब इसी तरह कर रहे थे। फिर था इंसाफ़, इंसाफ़ का भी जनाज़ा निकाला गया। यहाँ तक कि अमेरिका जो इसका आज़ादी का लंबरदार था, उसके जो असल बाशिंदे थे वो रेड इंडियंस थे, लेकिन उन सबको चंद हज़ार रह गए, उनको भी मार भगाया गया। ऑस्ट्रेलिया जो था, उसके जो असल रहने वाले थे, उनको वहाँ से मार दिया गया, निकाल दिया गया और उनके ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो बेचारे एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर मर गए और उन पे कब्ज़ा कर लिया गया। इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी इसी तरह से हुआ कि उनके जो मुल्क थे, उनके जो अफ्रीका था, उसके जो चीज़ें थी, उन पे कब्ज़ा कर लिया गया। इंग्लिस्तान के बड़े-बड़े जो उमरा थे, उन्होंने जाके उन पे कब्ज़ा कर लिया और वो खुद जो थे, वो बेचारे भूखों मरते रहे थे। इसके बाद तिजारत के मैदान में ज़लज़ला। तजारत के मैदान में ज़मीन को कैसे हिलाया गया। कभी तो इसको मुल्की जहाज़ बनाने की इजाज़त नहीं दी, यानी किसी मुल्क को जो है वो किसी चीज़ की तिजारत करने की इजाज़त नहीं, या उसे अपना जहाज़ बनाने की इजाज़त नहीं, या उसे अपनी कोई चीज़ जो है वो बेचने की इजाज़त नहीं। तो इस तरह से हर लिहाज से जो था वो मुल्कों को और कौमों को जो था वो उनके साथ तिजारत के मैदान में उनको नीचा दिखाया गया। जिसके पास ज़्यादा ताकत थी, उसने कमज़ोर मुल्कों का इस्तेहसाल किया इस मैदान में।
پھر یہاں پہ علم جو تھا اس کے میدان میں بھی زمین کو ہلا دیا گیا، کس طرح سے؟ اس طرح کہ پوری دنیا میں جو علم تھا وہ کمپلیٹ بدل گیا، فلسفے کی شکل بھی بدل گئی، سائنس بدل گئی، تاریخ، روایات اور جو تھی اخبارات اور ریڈیو اور ٹی وی، یہ سارا پچھلے صدی میں ایجاد ہوئے اور یہ سارے نکلے۔ تو خبریں جو تھیں اور جو زیادہ تر لوگ پڑھنے لگے وہ صرف خبروں میں اور ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ اور یہی سب کچھ دیکھنے اور پڑھنے لگے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں علم فلکیات کو تو پچھلی صدی میں اس سے پہلے صرف اتنا تھا کہ زمین ہے اور اس کے سورج ہے اور کچھ سیارے ہیں، لیکن پچھلی صدی میں یہ کہا گیا کہ کس طرح پہلے یہ تھا کہ جو زمین سورج ہے وہ چل رہا ہے، پھر ہوا کہ نہیں زمین چل رہی ہے، سورج رکا ہوا ہے، اور اب یہ پتا ہے کہ جو سورج ہے وہ بھی چل رہا ہے اور زمین سمیت اپنے پورے سولر سسٹم کو لے کر، اور آج تو اتنی ترقی کر چکی ہے یہ جو علم فلکیات ہے، لیکن پچھلی صدی میں بھی یہ کافی ترقی کر چکی تھی۔ نظام شمسی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا اور کائنات کتنی بڑی ہے، بگ بینگ کے بارے میں اور یہ سب کچھ، اور آج تو یہ ہے کہ جیمز ویب یہاں تک کہ اربوں نوری سال روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا جو ہے، اس حساب سے اربوں سال دور کے سیارے اور کلسٹر اور سپر کلسٹر اور گلیکسیز جو ہیں ان کے بارے میں علم ہمارے پاس آ گیا۔ جی، پھر ہے طب کے میدان میں، یہ علم فلکیات کے میدان میں طب یعنی میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی پچھلی صدی میں ہی آنکھ، کان، گلا اور یہ جو تھے اس کے آپریشنز اور ہارٹ کے آپریشنز اور سرجریز اور یہ ساری شروع ہو گئیں، اور یہاں تک کہ بڑے پیمانے پر اور لوگوں کو بہت ساری اس میں سہولیات ملی اور اس کے آلات جو تھے وہ بننے لگے میڈیکل کے، اور ان کو جو تھی وہ ساری سرجری جو شروع ہوئی، یعنی کہ میڈیکل کے میدان میں بھی ایک زمین کو ہلایا گیا، اس پہ ایک بڑا زلزلہ آیا گیا۔ جی، تو اس طرح سے جو تھی وہ میڈیکل کے میدان میں بھی یہ ہوا۔ پھر اب آخر میں رہ گیا کہ اس صورت میں ایک پیشگوئی کی گئی۔ یہ پیشگوئی کیا تھی؟ ایذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ ایذا کا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس وقت یہ وہ زلزلہ ہے جو اس وقت دنیا پر آ رہا ہے اور جس کا 1000واں حصہ بھی اس سے پہلے پوری دنیا پر یا اس بڑے پیمانے پر کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک ساتھ وقت دنیا پر آیا ہو۔ یہ نہ صرف مادی زمین پر آ رہا تھا بلکہ اہل زمین پر بھی آ رہا تھا، قیامت کے مشابہ، تو اس زلزلے کو قیامت کے مشابہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس زلزلے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس دن جب دنیا کفر میں ڈوب جائے گی اور دین بے کس ہو جائے گا، خدا تعالیٰ پھر اس بینہ کے ذریعے سے جو رسول اللہ من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو رسول آیا اس کے ذریعے، اس کے امام مہدی اور مسیح موت کے ذریعے دنیا کو پھر سے اس کفر کے بڑھتے ہوئے ناانصافی اور اس تمام چیزوں کے بڑھتے ہوئے سے جو ہے اس سے نجات دلائے گا۔ اور اس میں جب زمانہ جو ہے وہ کفر میں ڈوب جائے گا تو اس سے نجات دی جائے گی قرآن کے ذریعے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کر کے۔ اب یہاں پر آگے جو آیت ہے، ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 5 آیت نمبر یومئذ تحدث اخبارہا، تو یہاں پر جو ہے وہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اذا کا حامل جو ہے وہ تحدث ہے، اور یومئذ کو اذا کا بدل بتایا گیا ہے، اور مطلب یہ لیا گیا ہے کہ زمین اپنی خبریں اس وقت بتائے گی، یعنی زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سب کو پتہ چل جائے گا جب زمین پر زلزلہ آئے گا۔ مگر ایک دوسرا پوائنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یومئذ کا جملہ جو ہے وہ مستانفہ ہے، یعنی تحدث سے ایک نیا مضمون شروع کیا گیا ہے کہ اس دن یہ بھی ہوگا کہ زمین اپنی خبر جو ہے خبریں وہ بتائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا،
پہلے مضمون کی تسلسل میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے بھی ایسا زلزلہ آ چکا ہے اور دوبارہ اسی کے تسلسل میں ایسا زلزلہ آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ یہ کافی اس قسم کا مضمون تھا اس کا، کہ اس کو سمجھنا کافی مشکل تھا۔ بہرحال میں نے کوشش کی کہ تھوڑے آسان الفاظ کر کے سمجھا جا سکے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کویسچن کریں، اور اس سے میری بھی ہیلپ ہوگی کہ جب آپ کویسچن کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔